Team A will take care of guests and Team B will take care of catering. But for the success of event, it is very important that Team A and Team B should coordinate. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। राइट, कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपके सामने। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। राइट, so each what will happen in an organization, each department will perform their own task. They might forget or they might lose the path that their actual goal is to achieve organizational goal, right? And also all these departments are interlinked to each other. All these departments are also dependent upon each other. So this interdependence and this interlinking between the departments need to be coordinated. That means we need to, as managers, we need to synchronize the efforts of various departments, activities of different departments, right? Harmonize the work of different departments, and this is known as coordination. It is the force which binds all other functions of management. और functions of management में क्या आता है? Staffing, directing, planning, organizing and controlling, right? और एक बात समझिए, coordination involves synchronization of different actions or efforts of the various units of an organization, है ना? You have to synchronize the efforts of various units of organization. So इससे फायदा क्या होता है? What is the effect? This provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved without any conflict. Yes, coordination is very important to do the work, achieve goals without any conflict, right? अब ध्यान से समझिए, कोऑर्डिनेशन में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक, हमें समझना है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। दूसरा, हमें समझना है व्हाई डू वी कॉल दैट कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तीसरा, हमें समझना है कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सब हमें डिस्कस करना है, ठीक है? आई विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से हम शुरुआत करेंगे, राइट? सो सबसे पहले जो है फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। सी, दीज आर द 6 characteristics, features of coordination. It integrates group efforts, ensures unity of action, continuous process, pervasive, responsibility of all managers, and a deliberate function. Right? सबसे पहला, वैसे तो लेना मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, लेकिन मैं आपको सीधा 6th पॉइंट पे लेके जाऊंगी, उससे हमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी, to understand coordination better, let's compare it with cooperation. Cooperation के केस में क्या होता है कि मेरा कोई फ्रेंड है, नोन है, और अदरवाइज ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई एम हेल्पिंग समबडी for doing the task, for completing the task. Nobody has instructed me, told me that you have to help or support the other person. That is cooperation. Cooperation is voluntary, willful. अपनी इच्छा से आप किसी की हेल्प करते हो, मदद करते हो, सपोर्ट करते हो, वो कॉपरेशन है। जबकि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट function and conscious effort made by managers. कैसे? Manager will have to plan, think, and action plan needs to be decided that how things will be coordinated. कहने का मतलब, जो मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि ए बी सी डी ये लोग आपस में काम कैसे करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, ए के बाद सी आएगा या सी के बाद बी आएगा या डी आएगा, और कितना टाइम लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. It is a deliberate effort. It is a deliberate effort, conscious effort, right? So what is the difference between coordination and cooperation? Coordination is deliberate and cooperation is voluntary. कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक नहीं आता, स्पॉन्टेनियस नहीं आता, उसको लाने के लिए आपको प्लान करना है, थिंक करना है, लॉजिक लगाना है, सिस्टम बिल्डअप करना है, तब कोऑर्डिनेशन आता है, राइट? अब हम जो है
इसके बाद सीधा अपने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो सेकंड पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम ये आती है कि हमें दोनों पॉइंट सिमिलर लगते हैं, इसका डिफरेंस हमें समझने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। हाउ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये हमको पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले सी, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज डोंट गो बाय द कलर ऑफ स्किन और व्हाट दे आर वेयरिंग एटसेट्रा। आप इसको ऐसे समझिए कि दिस इज एक्चुअली showing you the people, diverse people working in an organization. This is brief, I can say this is a picture of today's multinational organizations, right? यहाँ पे आप देखेंगे people belonging to different thought process, different understanding, different perceptions, goals, views, opinions, likes, dislikes. They are all working together. Their interest is actually diverse. उनका interest क्या है? Diverse है. Then what is the role of coordination? Coordination क्या करता है? Coordination, it gives a common focus to group efforts to ensure that performance is as it was planned. मतलब ये जो अलग अलग लोग आए हैं उनको हमें बिल्कुल एक तरीके से काम करवाना है। इनका ग्रुप का जो एफर्ट है, this group effort should be what we want them to do. What is our goal, what is our focus? तो ये ग्रुप भले ही कितना भी डाइवर्स हो, इनको काम हमारे एक ही गोल के लिए करना पड़ेगा। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं coordination ensures unity of action. How coordination ensures unity of action? See, that point was the first one was talking about the group members. In this we are actually talking about the different departments, right? एक डिपार्टमेंट सेक्शंस में होता है, सेक्शंस में ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो वो जो ग्रुप्स थे वो हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किए। जो डिपार्टमेंट वाइज काम है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में, राइट। सो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अभी जो मैंने बिगनिंग में भी आपसे कहा था, सब अपने अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन? इट इज द बाइंडिंग फोर्स, राइट। क्या करता है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन आपके लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? दिस इज बिटवीन डिपार्टमेंट, सॉरी, दिस इज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, राइट। सो अब हम जो है थर्ड पॉइंट पे चलते हैं सीधा, that coordination is a continuous process. This is easy to understand. It is not going to stop कि आपने प्लान कर लिया, मैंने तो सारी चीजें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लिया, नाउ आई कैन सिट। नो, नॉट पॉसिबल। आपने प्लानिंग किया है तो स्टाफिंग में भी ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग में भी, सॉरी, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये पांचों क्या है? ये पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो हम क्यों कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे is not a one time function, right? It begins with the planning function of management and continues till the controlling function of management. समझ में आई बात? It begins with the planning function of management and continues till the controlling function of management, right? मैंने क्या है ये पॉइंटर एटसेट्रा को यूज करना अभी नया नया सीखा है, सो प्लीज बेयर विथ मी। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, ऑल परवेसिव। अगर आपको याद हो, दिस इज द टर्म विच वाज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तब भी हमने कहा था कि management is all pervasive and management is applicable to all levels of organization. It is applicable to all types of organization. It is applicable in the all around the countries, all around the world. यहाँ पर भी coordination as all pervasive का कोई बहुत अलग मतलब नहीं है। It is required at all levels of management. Levels of management हम discuss कर चुके हैं, top level, middle level, lower level, तीनों में coordination is required, right? And coordination integrates the effort of different departments. So यहाँ पर coordination is all pervasive function. कहने का मतलब all departments and all levels, सब जगह coordination रहेगा, right? So coordination is all pervasive function. Next आता है, it is the responsibility of all managers. Naturally, अगर top level, middle level
और थर्ड लेवल, राइट? इफ द कोऑर्डिनेशन, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था, उसका एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है कि टॉप लेवल वी कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट विद टॉप एंड द लोअर लेवल, हम टॉप एंड लोअर लेवल दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, थर्ड लेवल कोऑर्डिनेट विद वर्कर्स, सो it is the responsibility of all managers. Yes, so with this we come to the end of characteristics of coordination. Our next topic is we have to discuss the importance of coordination. Why is a common term coordination so important that it is included in class 12th business studies syllabus? Because we have to understand it from the point of view of management and from the point of view of a large business organization. So these are 3 points we have to discuss one by one. I'll start with growth in size. See, coordination is important because of the growing size of the employees, the number of employees working in the organization, right? So यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2023 तक अराउंड 3,89,000 employees were there, right? And as we have already discussed, these all individuals differ in their habits of work, background, approaches to situations and relationship with others, है ना? सारे अलग अलग होते हैं। वैसे भी ना कहीं नोट किया है कि when more than one person is working, मतलब जहाँ तक ह्यूमन ग्रुप्स का मामला आता है, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना इज नॉर्मल ह्यूमन नेचर, राइट? सो कहीं ना कहीं coordination is important to harmonize the efforts of such large number of employees who are different from each other and have individual goals, right? So इन सबको हार्मोनाइज करने के लिए जो बहुत अलग अलग लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, coordination comes into picture to see that the conflict do not arise between the diverse people working in one organization, right? नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, एक्टिविटीज, काम जो उन्हें करने होते हैं, राइट? एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन सबके अपनी अगर मैं बात करूं तो दे हैव देयर ओन objectives, their own styles of working, their own policies, etc. अब ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है इस पर फोकस कर सकते हैं। They have their own objectives, styles, policies, etc. Right? Again, there is a possibility of conflict. इन सब के बीच में क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने के लिए अगेन किसका काम सामने आता है? काम सामने आता है हमारे coordination ka. So I will say the yes, so coordination is important because it links activities of various departments to achieve organization goals. फिर से एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। The organization is divided into functions, ठीक है? Each and the departments, and each department is actually different when it comes to their own objectives, policies, and style of working. There may arise a conflict between the two. For example, सेल्स डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टाइम पे ऑर्डर नहीं किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह सकता है कि जो फाइनेंस वाले थे उन्होंने बजट पास नहीं किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ब्लेम गेम भी हो सकता है कि तुमने किया है, तुम्हारी गलती है, हमने नहीं किया, हमने अपना काम ढंग से कर दिया। सो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू लिंक ऑल द एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी है सीबीएसई में कि भाई एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज कोऑर्डिनेशन, राइट? एंड थर्ड, स्पेशलाइजेशन। इसके लिए ना आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड्स है, एक्सपर्टीज, राइट? और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। द रीजन इज टेक्नोलॉजी, वी आर डीलिंग विद सच सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। प्लस अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मार्केटिंग अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ कोर्स एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, फाइनेंस एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। तो वी हैव टू अपॉइंट स्पेशलिस्ट। कंपल्सरी है कि हम किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करें, right? Chartered accountant can be a specialist when it comes to the field of accountancy, right? ऐसे ही अगर आपका रिसर्च के लिए साइंटिस्ट को अपॉइंट करना पड़ सकता है, मशीन के लिए इंजीनियर्स को अपॉइंट करना पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इफ यू लुक एट दिस साइड,
यहाँ पर मैं पॉइंटर लेके जा रही हूँ, यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, फाइनेंस इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर, प्रोडक्ट डिजाइनर, लीगल एडवाइजर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये इनकी कुछ पिक्चर्स भी दे रखी है। अब क्या होता है ना, एक्सपर्ट्स हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दे हैव, they are able to understand their problems or they are able to understand their field of study, but they might not understand the other's point of view, है ना। हो सकता है द साइंटिस्ट में हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पर्सन ऑफ फाइनेंस में हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस मे रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करें, इनके बिना भी काम नहीं चल सकता, तो इनको भी रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, that we reconcile the differences in approach, opinion and interest of specialist, और ये काम कौन करेगा, coordination। So organization employ a number of specialists. Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge, and decide according to their professional criteria. And this may lead to conflict. And to reconcile and solve these conflicts, we need to coordinate, right? So, ये सारा पढ़ने के बाद, I think now we are in a position to discuss that why do we call that coordination is essence of management, ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऐसा हम क्यों सोचते हैं, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन ये है बेटा कि जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्चुअली देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में और इंपॉर्टेंस में आप ये चीजें पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट बता रही हूँ विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक एंड राइटिंग इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में क्या लिखें, कई बार वो भी एक दिक्कत होती है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, right? Coordination is essence of management. It is implicit and inherent in all the functions of management. Why? Because it is needed to perform all the functions of management. It is needed to perform all the functions of management, जिसका explanation हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो प्लानिंग होता है, इट बिगिंस विद एक्चुअली प्लानिंग प्रोसेस। जब हम प्लान करते हैं तो हम बेसिकली एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं, कौन कब कैसे क्या काम करेगा, व्हेन व्हाई हाउ the things will be performed. So it actually begins with the planning stage. Then we have to plan, we have to मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस प्लान्स। जो हमारे गोल्स है उसकी नीड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी प्लान्ड। देन वी नीड टू स्टाफ अवर ऑर्गेनाइजेशन एज पर द नीड्स ऑफ द प्लान्स, एंड फाइनली डायरेक्टिंग इज गोइंग टू गेट द वर्क डन एंड दैट टू इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सो यहाँ पर हम कहेंगे द कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट because it is required to perform all the functions, namely planning, organizing, directing, staffing, controlling of the management, right? Second, why do we call that the coordination is essence of management? Because it is required at all levels of management, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, top level, middle level and third level. With this we come to the end of the topic coordination. मिलेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 में, जब हम डिस्कस करेंगे importance, that is the significance of management and objectives of management, right? So follow for more.